So students, in this question we have learned about three terms. One is equal sharing of the stars, equal sharing of 8 stars. Second part is division facts and third part is multiplication facts. If you अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, you also learn about the relation between division facts and multiplication fact. Okay, one more question for you students. Okay, here there are total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rings are there. Okay, how many rings are there? 9 rings are there. Okay, and what we have to do? We have 9 rings divided equally in 3 plates. ठीक है, 9 rings is equally divided in 3 plates. So in previous question हमने क्या किया था? स्टार्स को 1 by 1 सेलेक्ट करके उसके बाद उसको प्लेस किया था, and then after that we are writing this part. Now here we are doing the question in opposite manner. Okay, how many rings are there? How many rings are there? 9 rings and divided into 3 plates. Okay, अभी मैंने multiplication का use सिखाया था आपको कि how the multiplication is useful in division. So here we use the multiplication, the table of 3. So in 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9. Okay, 3 threes are 9. It means you have to divide the 9 in 3 equal parts. So each part get 3. Okay, अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं हम. ठीक, रिवर्स ऑर्डर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो देखते हैं ईच प्लेट हैज 3 रिंग्स, यानी ये आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. क्या किया हमने? अभी तक 1 1 स्टार रखे थे, अब यहाँ पर हम यू हैव टू प्लेस 3 रिंग्स. ओके, देन 3 rings, then again 3 rings. Okay, so देखो remaining rings are 0. It means 9 rings are equally placed in 3 plates. So each plate has 3 rings. ये हमने क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है. यहाँ पर हमने क्या किया था? जो क्वेश्चंस थे, जो स्टार्स थे, 1 by 1 we have to divide it into the boxes. Then we write the division form. Here what we have to do? First we write the division form with the help of multiplication and then we place the ring. Both the methods are correct. आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? आपके से ज़्यादा कंफर्टेबल है? इट इज़ अप टू यू. ठीक है, मैथ्स को अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स. नाउ हियर डिवीजन फैक्ट्स. अभी हमने क्या किया था? वी हैव 9 rings, we have 8 stars and we distribute 9 rings and 8 stars. Okay, here the question is in opposite form. The circles are or the balls are already shared. Okay, how many balls are there? अभी कितनी balls हैं? इसको कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना. एक तरीका ये है, one method is that you have to count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 like this you have to count. Second method, you have to use your multiplication. थर्ड ब्लॉक्स में मार्क्स अच्छे आए हैं तो मल्टीप्लिकेशन का यूज भी आना चाहिए, है ना. सो द यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 5 balls, then plus 5 balls, then plus 5 balls, then plus 5 balls, है ना. So how many times we have to do the repeated addition? 1 2 3 4. So 4 into 5, there is 20 balls. Without counting, मैंने with the help of multiplication मैंने बता दिया कि there are 20 balls. And this part अभी हमने डिस्कस किया is called the multiplication fact, है ना. This part is the multiplication facts. Now the question is you have to write down the division facts. So how can you write the division facts? उसके लिए हमें टोटल बॉल्स तो पता होनी ही थी, और टोटल बॉल्स हमने किसकी हेल्प से निकाल लिया? मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से निकाल लिया. ठीक है, सो डिवीजन फैक्ट इज 20 balls
divide in 4 boxes. Sorry, 20 balls divided in 4 boxes. So each box contain 5 balls. Okay, each box contain 5 balls. This is the division facts. Okay, this is the division fact. Okay students, so like this you have to show the relation between multiplication and division. और यही क्वेश्चन आपके बुक में भी है. Same types of question is given in your book on page number 154 and page number 155. So solve this question in your copy. सिर्फ solve नहीं करना है, इसको समझना भी है. Use of multiplication and division, relation between multiplication and division. So please solve this question with good handwriting, colorful manner. और उसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम पिक्चर प्रॉब्लम नहीं करेंगे, इसके बाद हम नंबर्स प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम पिक्चर की हेल्प से नहीं, अब हमने पिक्चर की हेल्प से चीज़ें समझ ली है, अब हम डायरेक्ट नंबर्स का यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय योर डे. थैंक यू. Good morning students. Now let's start and our today's chapter and continue division. Okay, in previous chapter we have complete how we divide the total numbers of apples into equal parts. है ना, हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ शेयर करते हैं वो इक्वली शेयर करते हैं. ठीक है, आप अपने यंगर या एल्डर ब्रदर सिस्टर से अगर कुछ भी चीज़ मम्मी घर पे लाती है, पेरेंट्स घर पे लाते हैं, यू हैव टू शेयर इट विथ इक्वली. ओके, दैट इक्वल शेयरिंग इज नोन एज डिवीजन. ओके, सो वी डिफाइन द डिवीजन. What is the division? Division is equal sharing. Equal sharing, or we can say that division is equal grouping. Equal grouping, है ना. अब and in previous lesson we have also learned that the repeated subtraction is also called as division. So you also define division as repeated subtraction, and repeated subtraction is opposite of repeated addition. So repeated addition क्या था? Multiplication. repeated subtraction क्या हो गया? Division. तो जो division है वो multiplication का क्या हो गया है? Opposite. So you also saw that it is a opposite of multiplication. Opposite of multiplication. Okay, तो division को हम इतने सारे नामों से जान सकते हैं. ठीक है, equal sharing, equal grouping, repeated subtraction, opposite of multiplication. और आप क्या बोल सकते हैं? equally divide, जो हम जनरली डिवीजन मतलब डिवाइड करना. सो डिवाइड कैसे करना? इक्वली डिवाइड. सो ये सारी प्रोसेसिंग, ये सारे स्टेप्स हम इस लेसन में सीखेंगे. ओके, तो रिपीटेड सबट्रैक्शन हम सीख चुके थे. नाउ टुडे वी आर लर्न अबाउट इक्वली शेयरिंग एंड इक्वली ग्रुपिंग. ओके, आज हम इक्वली शेयरिंग और इक्वली ग्रुपिंग, और यहीं पर हमारा यूज होगा ऑपोजिट ऑफ multiplication also, है ना, opposite of multiplication also. So like this, with the various method or with the various term you can define the division. इस तरीके से आप define कर सकते हो division. बेटा बार बार आप लोगों से एक बात मैं हर दूसरे या तीसरे वीडियो में कहती हूँ, मार्क्स इज इम्पॉर्टेंट, बट मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें
उस चीज़ का नॉलेज हो जिसमें हमने मार्क्स ऑलरेडी लाए हैं। मैं अब आपका रिजल्ट भी आया है थर्ड ब्लॉक टेस्ट का। ऑल आर यू इसको वेरी नाइस, वेरी गुड रिजल्ट ऑफ क्लास सेकेंड। लेकिन आप लोग कभी बैठ के ये सोचना कि जो हमारा रिज़ल्ट आया है, जितना सिलेबस का हमें रिज़ल्ट आया है, क्या उतना नॉलेज आपके पास है? क्या उतना आप कर सकते हो अकेले बैठ के? कभी हमने जो पिछला मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, सो यू गॉट फुल मार्क्स इन मल्टीप्लिकेशन, पर आपसे क्विक कोई टेबल पूछे 7 9 जा, क्या आप जल्दी से 63 आंसर दे पाते हो? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योर स्टडी, कि आपने जो पढ़ चुका है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे ही इसलिए डिवीजन मतलब सिर्फ डिवाइड करना नहीं होता है। देयर आर सो मेनी टर्म्स वी यूज ऑफ डिवीजन इज इक्वल शेयरिंग, इक्वल ग्रुपिंग, रिपीटेड सबट्रैक्शन, ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इक्वली डिवाइड। लाइक दिस यू हैव टू डिफाइन द डिवीजन। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग करेंगे अभी यहाँ पर। नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज गिवन। अब जब हम इक्वली शेयर करते हैं तो हमारे पास नंबर्स ज़्यादा होते हैं और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, बांट देते हैं, शेयर कर देते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो हमारे पास मीन्स वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्स इज देयर। सो यू हैव टू डिवाइड द 8 स्टार्स शेयर्ड इक्वली इन 2 बॉक्सेस। इन दोनों बॉक्सेस में यू हैव टू शेयर दीज 8 स्टार्स। ठीक है, तो आप इसको मैथ्स में कैसे लिखोगे बच्चों? यू हैव टू राइट डाउन इन द मैथमेटिकल टर्म 8 स्टार्स डिवाइड इक्वली इन 2 बॉक्सेस। ओके, ये हमारा लिखने का तरीका हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम डिवाइड करके देखते हैं अब इसको। स्टार नंबर 1 देन 2 बॉक्सेस में करना है। ठीक है, सो सेकेंड then 2 2 3 4 4 okay. Now 8 stars is equally divided in 2 boxes 1 2 3 4 5 6 7 8. In 2 boxes you have to divide the equally 8 stars. So हमने इसको मैथमेटिक्स में भी लिख दिया। Now each box has, हर एक बॉक्स के पास कितने स्टार्स हैं? Each box has 4 stars. Each box has 4 stars. So you have to write down 8 divided 2 is equal to 4. अब आप देखो यहाँ पर हमने इक्वल ग्रुपिंग कर दी है, इक्वली शेयरिंग कर दी है। अब ये हमने डिवीजन के फॉर्म में लिखा है और आप इसको मैथमेटिकल के फॉर्म में देखोगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में देखोगे। इन फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन देखो 4 into 2 you get the 4 2s are 8 है ना। 4 2s are 8. It means it is a multiplication and this part is the opposite of multiplication. यहाँ 8 हमारा आंसर है और यहाँ 8 हमारा क्वेश्चन है। और इस बॉक्स को भी आप अगर रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में देखते हो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि 4 plus 4 it is 8 or 4 into 2 4 2s are 8. So अगर आप डिवीजन के फॉर्म में लिखते हो तो आप इसको कहते हो डिवीजन फैक्ट्स। क्या कहते हो? डिवीजन फैक्ट्स। और आप अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हो तो यू हैव टू कॉल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। ओके बच्चों, सो दे आर